اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ڈریم آف اسلام میں آج میں ان مخلوقات کا ذکر کرنے آئی ہوں جنہیں ہم عرف عام میں ایلین کہتے ہیں، اور آج کل ان ایلینز کا ذکر اس لیے بھی زیادہ عام ہے کہ میکسیکو میں دو خلائی مخلوق کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، اور میکسیکو نے بھرپور طریقے سے پوری دنیا کو دعوت دی ہے کہ آؤ اور اس کے بارے میں تحقیق کرو اور غور و فکر کرو۔ غور و فکر کے لیے تو قرآن پاک میں کئی متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ تو آئیے آج اسی موضوع کو لیتے ہوئے ہم کچھ اسلام کی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان ایلین کے وجود کا ذرا کچھ خلاصہ کرتے ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اس ٹاپک کو کور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ کچھ ثبوت اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلوقات اس کرۂ ارض میں موجود خداوند تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بغیر کسی مصلحت کے پیدا نہیں کیا، نہ یہ تو ہمارے لیے یقینی بات ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس میں خلائی مخلوقات کا بھی ذکر ہے، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے ان سب کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خلائی مخلوقات کے وجود کو ثابت کیا ہے۔ اب سائنسدانوں نے نظام شمسی اور اس گلیکسی سے باہر نکل کر کھوج کرنا شروع کر دی ہے، اور ان کو کسی دوسرے سیارے پر کوئی مخلوقات کے اثرات بھی مل جائیں تو یہ محض تحقیق اور ریسرچ کی بنیاد پر بہت تیزی سے اس پر کام شروع کر چکے ہیں، اور اس کی یہ شدت زور پکڑتی جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر آج کل بہت تیزی سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کو میکسیکو سے وائرل کیا جا رہا ہے کہ ایلین کے دو نشان ملے ہیں۔ پوری دنیا کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اس پہ تحقیق کریں اور ہمارے ساتھ ریسرچ کریں۔ ان دونوں باڈیز کو پر کلیم کیا ہے اور یہ ایلین ہے، اور یہ بھی کلیم کیا ہے کہ یہ 100% اوریجنل ہیں۔ اب کیا ہم سورہ جن اور سورہ رحمان کو جھٹلا سکتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ جبکہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن و حدیث میں ہمیں ممکنہ طور پر واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ دیگر مخلوقات کا وجود ہے اس کرۂ ارض پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اندر اور زمین کے اوپر آسمانوں میں مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ جن میں جن کی ایک خاص قوم کا ذکر کیا گیا ہے جو زمین پر ہی رہتی ہے، اور جن جو انسانوں سے بہت مختلف مخلوق ہے۔ کائنات میں سب سے پوری دنیا میں مخلوقات میں اور ان میں زندگی بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ سائنس اس مدعے کو لے کر ریسرچ میں دیوانہ وار مصروف ہے۔ ایک جگہ آقا دو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ایسی دنیا بھی ہے کہ جن کی آبادی انسانوں سے زیادہ، مگر کہاں؟ یہ اس کھوج میں سائنسدان آج تک ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ قرآن پاک میں سورہ جن، سورہ رحمان، صحیح بخاری کی ایک کتاب التفسیر، الترمذی کتاب میں الزہد میں خلا کے مخلوق یعنی ایلینز کا ذکر بآسانی ملتا ہے، اور یہ حوالے بتاتے ہیں کہ قرآن پاک اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ایلین اور دیگر دنیا کے مخلوقات کا وجود ہے۔
मगर इन दुनियावी और मखलूक़ात के बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं है, बस इशारे दिए गए हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिन पर दुनियावी और ज़मीनी लिहाज से गौर व फिक्र, तहकीक व तहरीर व तफसीर जारी व सारी है। कुरान पाक में सूरह इनाम में आयत नंबर 38 में अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया है, और ज़मीन में कोई जानवर और कोई परिंदा ऐसा नहीं जो अपने दोनों परों से उड़ता है, मगर वो जमातें तुम जैसी नहीं। हमने किताब में कुछ और भी फरोगुज़श्ता नहीं की, वो अपने रब के पास जमा किए जाएंगे। इस आयत में साफ वाज़ेह है कि ज़मीन के अलावा और भी दुनिया है, और भी जहाँ हैं जहाँ चरिंद परिंद और मसलन इंसानों की तरह मखलूक़ात होंगी, लेकिन कहाँ, ये तो अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने पास मालूमात में रखा है। अगर दुनिया को बता देते तो फिर न जाने इस दुनिया का अंजाम क्या होता। ताहम ये बात वाज़ेह नहीं है कि कुरान और हदीस के मुताबिक मज़कूर खलाए मखलूक़ात किस तरह की हैं, इनकी ज़िंदगी कैसी है। इस बारे में आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया और ना ही कोई जवाब मिल पाया है। एक जगह अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं कि सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने तमाम कायनात का मालिक है, सिर्फ इस ज़मीन का ही नहीं बल्कि समावात का। समावात असल में आसमानों से भी आगे एक जहाँ है, एक मुकाम है। अल्लाह ताला ने समावात में भी मखलूक़ात पैदा की हुई हैं और वो वहाँ उसकी हम्द व सना में मौजूद है। यानी इसको अगर हम इस तरीके से लेके इस गैलेक्सी में जहाँ जहाँ अल्लाह ताला की तख्लीक़ात हैं, अल्लाह ताला की पैदा कर दे ज़मीन आसमान हैं, हर जगह अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा करके अपने हम्द व सना के लिए छोड़ दिया है। लेकिन एक सैयारे से दूसरे सैयारे, एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन और एक आसमान से दूसरे आसमान से इन मखलूक़ात की रसाई मुमकिन नहीं। ये सब कुछ अल्लाह ने अपने ही कब्ज़े में रखा हुआ है। अगर अल्लाह चाहे तो सबको इकट्ठा कर दें या दो को इकट्ठा कर दें। इकट्ठा करने का मकसद क़यामत का दिन है। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त बख्शी है, हमने उसे ज़मीन और समंदर तक फैला दिया है और हमने उसे इल्म की वसअत दे दी, और चूँकि उसको इन दीगर मखलूक़ात पर तरजीह देती है। मतलब अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दे के उसको तमाम मखलूक़ात से औला व आला बना दिया और उसके ऊपर इल्म व तहकीक के दरवाज़े खोल दिए, जबकि ये फजीलत किसी और मखलूक को हासिल नहीं। इन अहादीस कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको क्या लगता है कि क्या एलियन का वजूद है? अगर हम कुरान पाक की तफसीर में जाएं, कुरान और हदीस की रोशनी में जाएं और मुख्तलिफ किताबात के हवालों को देखें तो यकीनन डेफिनेटली हमें इन खलाई मखलूक़ात यानी एलियंस की मौजूदगी का ज़िक्र मिलता है, लेकिन इशारों की हद तक। यकीनी बात तो सिर्फ़ अल्लाह को पता है। जब भी साइंस और जब से मेक्सिको में ये वाक़या हुआ है उसके बाद से तो साइंस और भी सरगर्म अमल हो गई है कि आखिर ये मखलूक आई कहाँ से, आखिर ये मखलूक़ात रहती कहाँ हैं, आखिर इन मखलूक़ात का रहन सहन, खाना पीना, ओढ़ना बछोना कहाँ है, और क्या इन सैयारों में ज़िंदगी और पानी की और ऑक्सीजन की ज़रूरियात मौजूद हैं, आखिर ये किस तरह रहती हैं। इन सब बातों के, इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए साइंसदान बहुत तनदही के साथ अपनी रिसर्च में लगे हुए हैं, लेकिन हर चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान के हवाले नहीं कर दी है। इंसान को सिर्फ इशारात दी हैं, हवाले दिए हैं, और हम बहैसियत मुसलमान कुरान और पाक, कुरान और हदीस को पे यकीन और एतक़ाद रखते हुए इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि हाँ मखलूक़ात का ज़िक्र है। इस ज़मीन आसमान में कुर्रे अर्ज़ में मखलूक़ात पाई जाती हैं जो अल्लाह की हम्द व सना में मसरूफ़ हैं,
वहाँ तक जहाँ तक इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। अल्लाह अपनी तख्लीक की झलक गाहे बगाहे अपनी तजल्ली से आश्कार करता रहता है। मैक्सिको में ये 2 एलियंस की जो बॉडीज़ मिली हैं, ये भी अल्लाह ताला की एक तजल्ली ही है कि आओ गौर व फिक्र करो और ढूंढो कि मैंने क्या क्या इस दुनिया में चीज़ें फैलाई हुई हैं। मैक्सिको में मिलने वाले एलियन की बॉडीज़ हैं, जबकि इनको पूरी दुनिया में गौर व फिक्र के लिए और तहकीक के लिए और रिसर्च के लिए साइंसदान रवाना होना शुरू हो चुके हैं और दुनिया महव हैरत है कि ये सब कैसे मुमकिन है। अक्ल नादा अल्लाह ताला की तख्लीक़ात और अल्लाह ताला की किबरियाई पर सुभान अल्लाह के अलावा और कोई लफ्ज़ जचता ही नहीं। बेशक अल्लाह ताला इस कुल जहाँ का मालिक है, हम तो सिर्फ़ एक नाक़िस अक़ल रखने वाले बहुत अदना से लोग हैं। अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला की हर दी हुई ईमान की रोशनी पे, हर अल्लाह ताला कुरान पाक के ज़रिए दी हुई तालीमात की रोशनी पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें हर उस बात पर यकीन और तहकीक के साथ, ईमान के साथ हर चीज़ पर यकीन रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब का ईमान बिलखैर हो इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।